There were two types of taxes that was levied there. First one was the tithe, that is the direct tax, that is charged by the church. Okay, church collected all the taxes from the peasants or included third estate members also. And the second was the indirect tax, that is called tell. Tell is a type of tax which levied with the useful items, mostly necessary products we use in everyday life. And the mainly two things that have high rate of taxes, that is salt and tobacco. Okay, these were the two items that have very high taxes at that time. Now the next topic we have in this was the struggle to survive. As in France, a time period from 1715 to 1789, between the time period of 1715 to 1789, there was huge increase of population. Around 5 million population was increased in this time period. That is a huge population. So that's why the demand for the food also increased. But the production was at the same rate. पर प्रोडक्शन जो था वो सेम रेट से ही चल रहा था. दैट्स वाई द डिमांड फॉर द फूड इंक्रीज, द सब्सिक्वेंटली द प्राइसेस ऑफ द फूड ऑल्सो इंक्रीज. तो उसी का रीजन रहा कि प्राइसेस जो रहे चीज़ों के वो भी बढ़ते चले गए. दैट्स वाई there is a case of subsistence crisis has been seen there in the France. तो उन्हें एक subsistence crisis कहते हैं कि जब कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा ना कर पाए, then it will called subsistence crisis. तो subsistence crisis की सिचुएशन वो यहाँ पर arise हुई. Okay. Now next was that the next topic is the growing middle class. Then अब जितने भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिगार्डिंग द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैनी मोर कंडीशंस, जितने भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे वो कौन किया करता था? द लोअर थर्ड स्टेट मेंबर्स, द लोअर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट मेंबर्स. वो प्रोटेस्ट तो करते थे बट दैट वुड बिकम फेलियर. Why? Because they don't have any method to protest on a large scale. क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था कि वो एक लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर सके. सो दैट्स व्हाई दे नीड एनी इक्विपमेंट और एनीथिंग दैट दे कैन यूज टू protest on a large scale. Then it will become on the middle class. तब एक टर्म सामने आया क्या? मिडिल क्लास. मिडिल क्लास द प्रॉस्परिंग मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट. जो थर्ड स्टेट में गरीब लोगों में से कुछ लोग प्रॉस्पर हुए, एजुकेटेड हुए, उनके पास न्यू आइडियाज थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ओके, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और मेनली इसमें जो अधिकतर लोग थे उसमें कुछ 3 फिलोसफर्स रहे जिन्होंने अपने बातों को सामने रखा. दैट वर जॉन लॉके, जीन जैक्स रोusseau एंड द मोंटेस्क्यू. According to the John Locke, he wrote a book. The name is Two Treaties of the Government. In this book, he explained the doctrine of divine, that he proposed that the power of the government must be divided into minimum 2 levels. कि कम से कम 2 levels में तो गवर्नमेंट की पावर क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए. Next was Jean Jacques Rousseau. He added his words in this theory. He proposed that there should be a contract between the government and the public. कोई एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी एक गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच. अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच होता है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनडायरेक्टली ही वाज डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. And the last philosopher who was Montesquieu. Montesquieu wrote a book, The Spirit of Laws. In this, he added his theory that the power of the government must be divided into 3 organs, that is legislative, executive and judiciary. In these 3 parts, the power of the government must be divided.
So these becomes the news headlines. These became the news headlines of the newspaper, and on every shop of like barber or coffee shop, it was decided or discussed with the large numbers of gatherings. तो लार्ज गैदरिंग्स के साथ ये सब डिस्कस होने लगा, मेनली ऑन दोज एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द अनएजुकेटेड पीपल लिव देयर। ओके, तो अधिकतर उन एरिया में जहाँ पे अधिकतर अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल रहा करते थे, उनके बीच इन बातों का सबसे ज़्यादा डिस्कशन होने लगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कैसे आना स्टार्ट हुआ, ये चेंजेस की थिंकिंग आई भी कैसे कि हमें गवर्नमेंट चेंज करनी है, लोग सोचे इसके बारे में, वो कैसे हुआ इसमें। तो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे गवर्नमेंट के, सो दे नीड टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो उन्हें ज़रूरत पड़ी इसकी टैक्स को इंक्रीज करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रसायन, अगर पुराने तरीके से देखें ओल्ड रसायन के अकॉर्डिंग, जब भी किसी राजा को टैक्स इंक्रीज करने होते थे तो उन्हें स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। इन स्टेट्स के जनरल की मीटिंग्स बुलानी होती थी और मीटिंग्स में जो डिसीजन लिया जाता वही मान्य होता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने एक मीटिंग अनाउंस करी इन 1789, दे अनाउंस ए मीटिंग। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में जो क्लर्जी से आए वो आए 300 मेंबर्स, नोबिलिटी से भी 300 आए, और जो थर्ड स्टेट है उससे 600 मेंबर्स यहाँ पर आते हैं। ओके, ये वर्सलीज में मीटिंग रखी गई। वर्सलीज में 300 फ्रॉम क्लर्जी, 300 फ्रॉम नोबिलिटी एंड 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट्स मेंबर्स केम टू मीट। इन दैट द किंग वांट टू डिस्कस द इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेस। जो इंक्रीज किए जाने वाले रेट्स थे टैक्सेस के, वो वहाँ पे डिस्कस होने वाले थे। बिफोर दैट द थर्ड states demanded a new method of voting, because according to the old regime one state had one vote, means if most of the members of clergy are in favor of increasing the taxes, then it will become one vote in favor of increasing in taxes. Nobility, if most of the nobles were in favor of the increase of taxes, then two votes become one for clergy, one for nobility in the favor of increment of taxes. But if the third state, most of the members, as you know, most of the members would vote in against of the increase of taxes, then one vote against the increase of taxes, 2:1, then it will propose to increase the tax. So third state members demanded that one general one vote, means they were demanding all votes differently. तो उन्होंने डिफरेंटली वोट की डिमांड करी, बट द किंग वॉज डिनाइड। किंग ने क्या किया? डिनाई किया। वी विल वोट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मेथड। So that's why in protest the members of the third state moved out from the meeting and assembled in an indoor tennis court at Versailles and called themselves as the National Assembly. In third states के members वहाँ से बाहर आए और अपने आप को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा किया और अपने आप को घोषित किया क्या? नेशनल असेंबली। And it is also a important question of our chapter. ये भी एक हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ द नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म। तो हमें इसका आंसर, तो ये पूरी थ्योरी इसकी रहेगी। एंड नेक्स्ट द टॉपिक बिकम द फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एज यू नो द मोस्ट ऑफ द मैन वर असेंबल्ड इन द नेशनल असेंबली एंड दे took oath that not to disperse from there till they form the constitution of France. उन्होंने एक शपथ भी ली कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम एक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार नहीं कर देते।
Okay, as you know, all the members, male members of the society were assembled in the National Assembly at the tennis court of Versailles. So all the females were now have to look after their household work and earning also. So that's why at that time when women of the stood in the long queue for hours and didn't get the food for the children, then they demonstrate all over the public that they are not getting the food. एंड उसी समय क्या हुआ कि लाइक जो मेंबर्स थी, वुमेन्स थी, वो लंबी कतारों में खड़ी हुई थी फॉर द घंटों तक कि उन्हें फूड के लिए, बट जब उन्हें नहीं मिलता था तो तब वो क्या गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने लगी। तब राजा ने अपने ऑर्डर्स, तो जो हमने स्टोरी 14 जुलाई 1789 की पढ़ी थी वो यहाँ पे रिपीट होती है कि राजा ने अपने ट्रूप्स को एंटर करने के लिए ऑर्डर दिया और फायर करने के लिए ऑर्डर किया। ऐसी कुछ र्यूमर्स आ गई थी, तो करीब 70,000 मैन एंड वुमेन सड़कों पे आए, उन्होंने जगह जगह तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ओके, इस कंडीशन में बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे, जो नोबल्स थे, वो तो देश छोड़कर जाने लगे और पड़ोसी देश में जाकर रहने लगे। एंड जो राजा था लुई 16 द किंग, उन्हें भी इस चीज़ का डर रहा कि कहीं वो हम पर अटैक करने ना आने लगे। सो दैट्स व्हाई दे एग्रीड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड द नेशनल असेंबली। दे दे accepted the National Assembly and the Constitution made by them. ओके, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया और जो भी नेशनल असेंबली इनके द्वारा गठित की गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 2.1, दैट इज द फ्रेंच बिकमिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देन आफ्टर दैट कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया 1791 में जाकर वो कंप्लीट हुआ। 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेट थी वो 1791 और वो कंप्लीट हुआ, उसको एक्सेप्ट किया गया लुई 16 के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट नाउ द न्यू सोसाइटी वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। ओके, एक्टिव पैसिव सिटीजन्स में ये डिवाइड हुए सोसाइटी। एक्टिव सिटीजन्स मीन्स द मेंबर्स ओनली मैन हु वर ऑफ द एज ऑफ 25 एंड पेइंग द टैक्स ऑफ 3 days लेबर वेज। ओके, मीन्स एक्टिव सिटीजन में कौन लोग आएंगे? एक तो 25 ईयर्स की एज की होनी चाहिए, ओके, और टैक्स पे कर रहा हूँ 3 days वेजेस का। जो लेबर, एक लेबर की जो 3 दिन की वेजेस होती है उतना अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो वो इंक्लूड होंगे किसमें? एक्टिव सिटीजन्स। अदरवाइज इन पैसिव सिटीजन्स ऑल वुमेन चिल्ड्रन वर इंक्लूडेड इन द पैसिव सिटीजन्स। क्लियर टू एवरीवन? और अगर किसी को मींस नोबल्स में मतलब लाइक एक मिनिस्टर बनना है तो ही शुड बी ए हाई टैक्स पेयर, वो एक हाई टैक्स पेयर होना चाहिए, तभी वो एक मिनिस्टर्स की पोजीशन को हैंडल कर सकता है। ओके, सो दीज आर द 2 टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे। Rest of the chapter we will discuss in our next class. Thank you.